Today, dear students, today we will study about gene therapy. What is gene therapy? Like when we have any infections, when you have any cough, fever, and everything, we take medication. Same way as the gene therapy. This is the therapy in which genes are introduced into the existing cells of the body to prevent or cure wide range of diseases. It is a technique for correcting defective genes responsible for the disease development. It aims to bring about genetic modification in an individual carrying disease causing genes by introducing desirable genes by a vector. Means what happens is in this gene therapy, like the individual will be having defective genes which will be causing the disease. So when we do give gene therapy, what happens is that defective genes gets corrected, and in that way the disease can be prevented. So the basic process what is done in this. In gene therapy, a corrected gene is inserted into a genome to replace an abnormal disease causing gene. Genome is the complete genetic characteristics of the individual. So a corrected gene is introduced into the genome to replace the abnormal disease causing gene. And how it is introduced? For this introducing this corrected gene, we need some transport, that is called a vector. A carrier called a vector must be used to deliver the therapeutic gene to the patient's target cells. Now there are two types of gene therapy. One is somatic gene therapy and the other is germ cell gene therapy. In somatic cells, the treatment is done to all the somatic cells. That means it's the vegetative division, not the reproductive one. So therapeutic genes are transferred into the somatic cells. That means introduction of gene is done to the bone marrow cells, blood cells, skin cells, means everywhere except the reproductive part. Once one gene therapy is given, then that disease will be corrected and will not follow in the later generations. At present, all researches are directed to correct genetic defects in somatic cells. This has been done in the somatic cells. Now, second is germline cell gene therapy. This is done actually therapeutic genes therapy is transferred into the germ cells. That means the reproductive cells. Genes are introduced into eggs and sperms. Germs cells are modified by introduction of functional genes which are ordinarily integrated into their genomes. It is heritable and passed on to later generations. For safety and ethical point of view, presently this germ cell therapy is not practiced. Now, approach to gene therapy. There are two types of approach, that is ex vivo gene therapy and in vivo gene therapy. Ex vivo gene therapy means which is done outside the human body. So in this the genes are cultured, the cells are cultured in an outside area, that may be in a lab, in a culture medium, and after that it is reinserted into the body. So what are the steps used? That is, isolate cells with a genetic defect from a patient, grow the cells in a culture, introduce a therapeutic gene, select genetically corrected cells and grow, ट्रांसप्लांट द मॉडिफाइड सेल टू द पेशेंट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिसीज्ड डिफेक्ट वाला सेल है उसको निकालते हैं, उसको कल्चर में ग्रो करते हैं. उसके बाद वो जो करेक्टेड जीन है उसको हम ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं. उसके बाद उसको वो मॉडिफाइड सेल्स को हम पेशेंट में फिर से ट्रांसप्लांट करते हैं. तो ये जो फर्स्ट एक्स वाइवो थेरेपी किया गया था इन ए 4-year-old गर्ल Ashwanti De Silva, who was suffering from immunodeficiency disease, and इसको करने के बाद मीन दिस व्हाट वाज डन वाज the adenosine deaminase का उस जीन में इसका डिफेक्ट था. तो व्हाट वाज डन वाज कि जब इसको करेक्शन किया गया, इससे क्या हो गया कि इसकी जो बीमार होने लगी थी दैट करेक्टेड इम्प्रूविंग एंड देन लेकिन दैट डजंट लास्ट फॉर सो लॉन्ग. 3-4 महीने के बाद अगेन इट हैड टू बी रिपीटेड. 40% उसका इम्यून सिस्टम में करेक्शन था
और उसको करंट कोल्ड नहीं था, शी कुड अटेंड द स्कूल, यूपिंग के खिलाफ उसको इम्यूनाइजेशन दिया गया, बट ये प्रोसीजर लंबा टाइम नहीं चला, आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन उसको रिपीट करना पड़ा। फिर अप्रोच टू इन वाइवो जीन थेरेपी। इन वाइवो जीन थेरेपी में क्या है, डायरेक्टली वो जीन्स को क्या करते हैं हम, डायरेक्ट टारगेट सेल्स में सीधा वी इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो टारगेटेड टिश्यू यूजुअली कौन सा रहता है, लिवर, मसल्स, स्किन, स्प्लीन, लंग्स, ब्रेन एंड ब्लड सेल्स। तो जीन डिलीवरी इज कैरिड बाय वायरस और नॉन वायरल वेक्टर मार्कर्स, और इसको मॉडिफाई करके ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट में। तो इसका भी प्रोसेस वही है, इंट्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक जीन्स, ग्रो द सेल्स इन कल्चर, आइसोलेट द सेल विद जेनेटिक डिफेक्ट फॉर ए पेशेंट, उसके बाद उसको ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया में, एंड देन उसको फिर से वो कल्चर्ड वाले को री इम्प्लांट करते हैं उनके बॉडी में। इसको मेनली पहले एक बार किया गया था सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले केस में, जिसमें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर ये एब्सेंट था ड्यू टू जीन डिफेक्ट, और उसके कारण जो क्लोराइड आयन्स हैं वो हमेशा ऊज आउट होता था, एंड देन जो सेल्स और वाटर पूरे सराउंडिंग में भर जाता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक्यूमुलेशन के अंदर स्टिकी म्यूकस फॉर्म होता था इन द रेस्पिरेटरी लंग्स एंड लंग्स। तो इसको ट्रीट करते थे, उस डिफेक्टिव जीन को ट्रीट करते थे बाय एडेनोवायरस वेक्टर। तो वेक्टर्स, इसको व्हाट इज़ अ वेक्टर, वेक्टर एक ट्रांसपोर्ट है, एक वैन है, यानी जो चीज़ जिससे कि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो वेक्टर इज़ ए व्हीकल जिससे कि हम जो करेक्टेड जीन्स को हम पेशेंट के बॉडी में डालते हैं। ये दो टाइप का होता है, वन इज़ वायरल वेक्टर एंड सेकेंड इज़ नॉन वायरल वेक्टर। तो वायरल वेक्टर में 4 टाइप्स का होता है। रेट्रोवायरस वेक्टर सिस्टम, इसमें क्या है कि डीएनए जो है इसमें ये रेट्रोवायरस वेक्टर सिस्टम है। तो वायरस जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कॉपीज़ को ऑफ देयर आरएनए से वो डबल कॉपीज ऑफ डीएनए बना लेता है, और उसको फिर क्या है कि अपन इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट के बॉडी में। दैट इज़ मेनली इन HIV वायरस। सेकेंड है एडिनो वायरस वेक्टर सिस्टम। ये क्लास ऑफ वायरस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम से जो रेस्पिरेटरी, इंटेस्टाइनल एंड आई इन्फेक्शंस क्रॉस करता है। मेनली कॉमन कोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। Third is adeno-associated virus vector. It is a single stranded non-pathological small DNA virus. ये जब होस्ट में एंटर करता है तो ये मेनली क्रोमोसोम 19 में स्टिक हो जाता है। देन फोर्थ इज़ अ herpes simplex वायरस वेक्टर। ये क्लास ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA है जो मेनली एक पर्टिकुलर सेल को अफेक्ट करता है, दैट इज़ द न्यूरॉन्स। ये मेनली नर्व एंडिंग्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। नाउ सेकेंड इज़ द नॉन वायरल मेथड्स। नॉन वायरल मेथड्स में नेकेड डीएनए, इसमें नेकेड डीएनए को जो डायरेक्टली डीएनए को जो है टारगेट टिश्यू पर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। डार्क क्वांटिटीज़ ऑफ डीएनए को इंजेक्ट किया जाता है। तो जो ख़राब वाले जीन है वो ये अच्छे वाले जीन्स इंजेक्ट कर रहे हैं वो उनका काम को कर लेता है। फिर है लाइपोप्लेक्सिस। लाइपोप्लेक्सिस क्या है, डीएनए जो होता है उसमें से एक आर्टिफिशियल लिपिड लेयर होता है। वो लिपिड लेयर यूजुअली जो लाइसोसोम्स जो प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम क्या दे आर दोज एंजाइम्स व्हिच एनगल्फ द सेल्स दमसेल्स। तो वो जो है वो क्या करता है, उसको ये कर एनगल्फ करता है। तो इसके कारण वो डीएनए नष्ट हो जाता है। लेकिन जो लाइपोप्लेक्सिस को अपन जब इंट्रोड्यूस करते हैं वो डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। फिर बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो सेल्स को अपन यूजुअली रेड ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह से यूज़ करके करते हैं। फिर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये एक लार्ज डीएनए है जिससे कि अपन रेगुलेटरी एलिमेंट्स में अपन इसको आर्टिफिशियली अपन ट्रांसफ़र करते हैं। फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये इट इनएक्टिवेट्स द जीन, जो जीन डिसीज कॉज करता है उस चीज़ को ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के इनएक्टिवेट कर देता है। दिस वाज नाउ नेक्स्ट विल गो टू मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी। मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी, कैसे अपन जीन को अंदर डालते हैं। इट इज़ बाई जीन गन। जीन गन होता है जिसको क्या है कि दैट इज़ कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन, और उसको अपन थ्रू माइक्रो इंजेक्शन शूट करते हैं डीएनए के अंदर। फिर माइक्रो इंजेक्शन, इसे प्रोसेस है जिससे कि ग्लास माइक्रो पिपेट यूज़ करके वो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस को अपन लिविंग सेल के अंदर में डालते हैं। फिर डिटर्जेंट मिक्सचर्स,
इसमें केमिकल कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट को मिक्स करते हैं विद फंक्शनल डीएनए और उस डिसायरेबल फंक्शन लाने के लिए। फिर लाइपोफेक्शन, इसमें क्या करते हैं, टेक्निक यूज टू इंजेक्ट जेनेटिक मटेरियल्स इनटू ए सेल बाय मीन्स ऑफ लाइपोसोम्स। फिर जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी होता है। इसमें इस फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी में जो पूरे डिफेक्टिव जीन्स इज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन जीन उसको रिप्लेस करता है। नेक्स्ट इज जीन इनहिबिशन थेरेपी। ये क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन को ब्लॉक करता है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं एंटीजीन एंड एंटीसेंस थेरेपी। एंटीजीन थेरेपी क्या करता है, ब्लॉक्स अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अपन जब अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में अपन ने डिफरेंट स्टेप्स देखा था कि mRNA, ट्रांसफर RNA, tRNA, सब राइबोसोमल RNA और ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखे थे। तो वो ये एंटीजीन क्या, इट ब्लॉक्स अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूजिंग एंटीजीन ओलिगोन्यूक्लियोसाइड्स। और एंटीसेंस क्या है, ये ब्लॉक करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को, जिससे कि क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स नहीं हो पाता। लेकिन ये जो जीन थेरेपी जो है, इसमें कई प्रॉब्लम्स भी जो उसके इफेक्टिवनेस को ब्लॉक करता है। वो क्या है कि एक बार अपन कर दिए तो लास्टिंग इफेक्ट नहीं मिलता, उसको बार बार करना पड़ता है, बिकॉज सेल्स मल्टीप्लाई डिवाइड बार जल्दी जल्दी होता है। फिर इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है टू द ट्रांसफर्ड जीन स्टिमुलेंट्स, इट्स अ पोटेंशियल रिस्क टू जीन थेरेपी, कभी कभी वो रिजेक्शन हो सकता है। फिर वायरसेस जिसको अपन वेक्टर जैसे यूज़ करते हैं, वो भी टॉक्सिसिटी कोर्स करता है और इम्यून रिस्पॉन्सेस जो है अफेक्ट करता है। देन जीन थेरेपी ये एलिमिनेट एंड प्रिवेंट करता है हेरिडिटरी डिसीज़ेस को, और उसको पोटेंशियल है वो एलिमिनेट करके प्रिवेंट करते हैं हेरिडिटरी डिसीज़ेस को। फिर इसको हार्ट डिसीज़ेस, एड्स, कैंसर, इस सब को भी ये ट्रीट करता है। देन इट कैन बी यूज टू इरेडिकेट डिसीज फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स। अगर ये इसका प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन मिल जाने पे इज़ वेरी इफेक्टिव। बट क्या है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ अभी जेनेटिक कंडीशंस में करने की कोशिश कर रहा है। जीन थेरेपी एज ए पोटेंशियल टू, अगर ये रियल प्रैक्टिस में फुली प्रैक्टिस में आ गया, इट हैज़ ए पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनलाइज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्स इन जीन थेरेपी। रोल ऑफ नर्स क्या है, असेस द पेशेंट्स फैमिली, उसका हेल्थ एंड अदर हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री टेकिंग करना है। कलेक्ट ऑल रिलेवेंट जेनेटिक टेस्टिंग रिकॉर्ड्स, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसके फिजिकल नीड्स को इंश्योर करना है, प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, कॉन्फिडेंशियल रखना है उसे सब चीज़ों को, कोऑर्डिनेट करना है बिटवीन इंडिविजुअल एंड जेनेटिक स्पेशलिस्ट, असिस्ट करना प्रोसीजर के दौरान, all documentation should be sent, so main record should be maintained. Then provide regular evaluation and follow up, उनको कब आना है, क्या आना है, कैसा आना, पूरा follow up measures करना है. So this was all about the gene therapy. Now we'll see what all we have. So just to summarize, we studied about gene therapy, definition, उसका types, approach to gene therapy, vectors used, methods, factors hindering, and role of nurse. So students, this ends with gene therapy. Please comment and ask doubts whatever is not clear. Thank you.